and JP Morgan. Currently, she is at the JP Morgan Chase, and she has held various positions in project management, business analysis areas. And she, I think, is going to talk today about all her, how has been her journey and some of the key, aspects that she has focused on in her life that helped her excel in her life till date. So with that brief introduction, Kritika, it's our great pleasure to have you today on this forum, and I'll hand it over to you to get started. Thank you, Vinaya, for such a good introduction. Hi, everyone. I'm Kritika here, and I have been born and raised in Mumbai. My career started when I was in 12th standard. I always wanted to go ahead and always try something new, and always wanted to go out and explore what's there in the world. And I got a lot of support from my family in terms of going and exploring different avenues. So I started with an ad agency, and over there I had more of like an admin role because it was just like I was in college and I wanted to try and do some summer job. It just lasted for like 3 or 4 months, but what I did gain out of it was that I figured one thing was that I always wanted to take new challenges, accept them, and had an approach of going ahead and trying something and solving issues if there were any. So that being said, I continued my education. I did my BCom. I finished my graduation in 2003, and I was out in the market looking for a job. And there were a lot of times that I was turned down, and I was told that you're just a BCom graduate and you may not really get a job out there, and you may only get like an admin or a receptionist job or whatever. But like I said, I was always ready to try and go out and just give interviews. I kept giving interviews, and I got to this place called, and it's a trust. It's called Concern India Foundation. Not sure if you guys have heard of it, but it's a trust where I started my career, my official career, I would say, as a fundraiser. So it was a noble cause where I had to go in and go out, meet different people on daily basis. So it was, if you had to think, it was more like a door-to-door marketing, meaning I had to go spread the word of what Concern India Foundation as a trust was doing, of supporting all the NGOs and ensure I would raise money for them so that they could continue supporting these NGOs. I was heartfelt when I went to some of the NGOs, and it kind of touched me because I felt really blessed that I think most of us, we are very lucky that we have a family who takes care of us, who kind of keeps us in this shell and protects us from this world where there could be a lot of bad things happening out there. So it kind of was an eye-opener. But what I also gained on the other side was that I learned how to just open up and just speak to any stranger and sell my idea and convince that person to join hands with me in doing some good cause. And I think that was like one of the biggest achievements that I ever had, that I was able to convince people to do something noble and like stop thinking about their day-to-day issues and start thinking about the society and start thinking about how they can contribute back to the society. And I think that is something that I will always take with me wherever I go. So I think that's the thing that's the message I want to send you guys or tell you guys is whatever. Oh, I'm sorry. Then like whether they can hear you. Are you guys able to hear me? Because I just saw a message saying that people are facing problems. I'm able to hear you, Kritika. I think back in India there is a problem because I just saw a message. Yeah, Kritika, actually there are 10 students with name AEG.
and they have not yet joined audio conference, so maybe they have some problem joining the audio conference. Maybe let's Oh, wait for Lalit or Ranjit to come back, whether once they see this. okay. I'll wait then. Lalit, please let us know if the AG could be able to join the audio, or how do we continue? Sorry, Kritika. No problem. That's okay. Looks like they are just seeing. Hello, AG, can you hear us? Hello. Yeah, Kritika, now they can hear us. Anup B is still not on audio. Right. आवाज येतो. Okay, so everyone can hear me now? Yeah, Kritika, I think you will continue now. Yes. And I guess there's a request to speak in Hindi, is that right? Yes, please, if possible. I'll try. Well, I do speak Hindi, but I think it's more of Mumbai Hindi, but so I can try. Hi everyone. मेरा नाम कृतिका है और मैं मुंबई से हूँ. मेरा जन्म मुंबई में हुआ था और मैं वहीं पे बड़ी पली हूँ. मैंने अपना करियर 12वीं कक्षा से शुरू किया था. मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने समर जॉब से शुरू किया था. मतलब जब वेकेशंस में छुट्टियों पे जब मेरे पास एक्स्ट्रा वक्त होता था तब मैं जॉब ढूंढने जाती थी और कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करती थी. मैं हमेशा सोचती थी कि मैं हर किसी से कुछ अलग करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा कुछ नई चीज़ों की तलाश में रहती थी. 12th में फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली. मैंने एक एड एजेंसी ज्वाइन की. हालांकि वो जॉब ज़्यादा दिन तक रही नहीं क्योंकि मेरा वेकेशन ख़त्म हो गया. इट वाज जस्ट फॉर 3 months. वहाँ पे मेरा काम था एज एन एडमिन. इट वाज जस्ट एन एडमिन रोल और जिस रोज़मर्रा की जो डेली रूटीन चीज़ें होती है वही हैंडल करनी थी. उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब ग्रेजुएशन कंप्लीट होते वक्त बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि एक बीकॉम ग्रेजुएट को एक रिसेप्शनिस्ट या ऑपरेटर की नौकरी मिल सकती है. बट मेरा एम कुछ और था. मुझे कुछ नई चीज करनी थी, कुछ अलग करना था सब लोगों से. जो मेरे सारे दोस्त करते थे उन सब से अलग कुछ करना था. तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक ट्रस्ट के साथ काम करने के लिए. कंसर्न इंडिया फाउंडेशन करके ये ट्रस्ट था. ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनजीओज को सपोर्ट करता है. मीनिंग अगर कोई एनजीओ है तो उनको ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता है या कोई कुछ और अगर उनको किसी तरह की सपोर्ट चाहिए रहती है तो इस तरह से वो हेल्प करते. तो मेरा काम ये था कि बाहर जाना, लोगों को ये बताना कि ये ट्रस्ट क्या करता है और उनके काम में उनको हेल्प करने के लिए उनके लिए पैसे इकट्ठा करना. जस्ट आम आदमी से या आम जनता से
किसी से भी जाकर मिलो, जाकर बस उनके लिए पैसे या फंड्स या डोनेशंस कलेक्ट करो और वापस आके वो डोनेशंस सबमिट करो ऑफिस में। और ये मैंने किया कुछ लगभग 1.5 साल तक। और जब मैं ये कर रही थी तो मुझे एक एहसास हुआ कि हमारी लाइफ बहुत ही हम बहुत ही ऐसे खुशकिस्मत है जिनको फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। पर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको आज भी बहुत सारी हेल्प की जरूरत पड़ती है या उनको ये सपोर्ट नहीं मिलता, उनको कोई फैमिली नहीं होती। तो हमें कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करना ही चाहिए। और ये जब मैंने सीखा तब मुझे मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आई वॉज वेरी थैंकफुल कि हाउ ऑल दिस कैन इम्पैक्ट अस। तो ये सारी चीजें मैं सीखी और ये आज अपने साथ रखती हूँ। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया JP मॉर्गन में, जो मेरा मतलब जो अकाउंटेंसी में मेरा जो पढ़ाई की थी मैंने, उसके थ्रू मुझे JP मॉर्गन में जॉब मिली और मैंने उनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। और वहाँ पे कुछ 3 साल लगभग काम करने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे न्यूयॉर्क में आने के लिए एक ऑफर दी। तो यहाँ पे उनके सेम ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में एक ओपनिंग थी और उन्होंने मेरा काम जो देखा तो उसके बेसिस पे उन्होंने L1 वीजा के थ्रू, विच इज मतलब जो इंटरनल कंपनी ट्रांसफर बोलते हैं, तो मतलब जैसे JP मॉर्गन इंडिया से JP मॉर्गन न्यूयॉर्क में ट्रांसफर ये किया। एंड तब से मैं यहाँ पर हूँ और लगभग 6 साल से। और अब मैं दूसरे रोल्स में, मतलब बहुत सारे डिफरेंट रोल्स में मैंने काम किया JP मॉर्गन में इन 6 सालों में। और अब मैं उनके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड पे हूँ। ये है मेरी लाइफ की जर्नी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज मुझे बताइए। किसी को कुछ सवाल है? हाँ कृतिक, हेलो। हाँ हाँ, इंडिया का जो लाइफ है और अमेरिका का लाइफ है, इसमें कैसा आपको डिफरेंस लगता है? मुझे लगता है कि हर जगह अपनी एक खासियत रखती है। तो जैसे मैं बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में आपको जो सोशल लाइफ है आपकी, वो बहुत मैटर करती है और वो बहुत ही अच्छी है। बट इन टर्म्स ऑफ जब काम करने की बात आती है तो जो वर्क लाइफ मतलब जिस तरह से काम करने का अप्रोच जो है या जिस तरह से काम अमेरिका में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। सॉरी, हाँ विचारा प्रश्न। काही प्रश्न आहेत का आपल्याला भंडाऱ्याला? नाही, आवाज येतोय तिकडे व्यवस्थित?
आवाज येत आहे पण व्हिडिओ नाही दिसत आहे. अच्छा, व्हिडिओ ठीक आहे. आणि तुम्हाला विचारा काही तुमचे सध्या काय करत आहेत तुम्ही तिथे? शिक्षण काय सुरू आहे? M.Com. अच्छा अच्छा. तर आज आपल्या मॅडमने पण जे प्रेझेंट केलं ते पण कॉमर्सचेच बॅकग्राऊंडचे आहेत. तर ते आता टाकेमध्ये आहेत, जॉब करत आहेत. तर तुम्हाला पुढे काय शिकायचं आहे त्या संदर्भात काही प्रश्न आहेत का? हॅलो. हां हां, बोला बोला. काय क्वेश्चन विचारायचं. हां बोला. जसं की आपण आता इन्फॉर्म केलं हां, एकच माईक मध्ये बोला. ते जसं बेसिक स्टुडंट आहे, जसं माझ्याकडे कॉमर्स झालेलं आहे, तर माझे जे क्वेश्चन आहे की जसं आपण इन्फॉर्म कम्प्लीट केलं, चांगलं शिक्षण असं कोणतं घ्यायला पाहिजे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला सामोरं जाण्यासाठी चांगला फायदा आहे. मला समजला प्रश्न असेल, बरोबर असेल तर क्लिअर आवाज नाही आला, पण मला वाटतं की M.Com नंतर काय काय अपॉर्च्युनिटीज आहे असं बोलतात. अच्छा. कृतिक, hello. Yeah. There is question. Yeah, you understand. Yeah, I got it. M.Com के बाद CA का एक अपॉर्चुनिटी है. अभी इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा CA की रिक्वायरमेंट है. तो चार्टर अकाउंटेंसी जो मतलब कॉमर्स और M.Com के बाद अगर आपने M.Com अकाउंटेंसी में किया है और अकाउंट्स आपका बैकग्राउंड है तो CA कर सकते हो आप. मैम ये एक ही ऑप्शन बचता है क्या? इसके अलावा ऑप्शन भी है क्या? हेलो. पुन्हा विचारा. पुन्हा विचारा. हाँ सर, आवाज कटत आहे. हो, हळूहळू जोरात बोला. हां. नाही काय म्हणतात, जसं आपल्याला CA म्हणजे आपल्या कामाची ॲडमिशन घ्यायची आहे, CAच्या CA एक पर्याय आहे का म्हटलं की त्याच्यानंतर दुसरं काही आहे? म्हणजे CAच्या व्यतिरिक्त आणखी. ओके ओके ओके. आय कुड नॉट हिअर. या मी नाही तर. ओके. तुम्हाला प्रश्न असा आहे का CAच्या व्यतिरिक्त आणखी काय काय अपॉर्च्युनिटी? हां. अच्छा. तो अपॉर्चुनिटीज बिसाइड्स CA के अलावा बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है. जैसे बहुत सारी ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज है जो फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटी देती है, राइट. और अगर आपका फाइनेंस या अकाउंटेंसी बैकग्राउंड रहता है तो वो लोग ये एक्सेप्ट करते हैं, मतलब M.Com ग्रेजुएट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, बट इट माइट बी एज अ फ्रेशर. और वहाँ वो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं. दूसरी और पॉसिबिलिटीज ये है कि गवर्नमेंट जैसे है उसमें आप ट्राई कर सकते हो, या बैंकिंग की एग्जाम्स दे सकते हो आप, और बैंकिंग में आप ट्राई कर सकते हो. इंडियन बैंक्स में आप ट्राई कर सकते हो बैंकिंग की एग्जाम्स देकर. हाँ सर, तो वही ट्राई कर रहे हैं. वही कॉम्पिटेटिव क्लास बैंकिंग की एग्जाम दे रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं. अच्छा, आप वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग वगैरह का? अच्छा, वेरी गुड. तो अभी जैसे मैडम ने बोला है कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग क्षेत्र में. तो आप वहाँ पे ऐसे एक ग्रुप, मुझे लगता है कि स्टडी सेंटर है, तो उसके हिसाब से आप काफ़ी अच्छा ये कर सकते हैं. और अमेरिका में भी आप हायर स्टडीज़ के लिए GRE वगैरह का प्रिपरेशन कर सकते हैं. हम अगले सेशन में उसका करेंगे ऑर्गेनाइज डिस्कशन. तो मैडम कृतिक,
अगर कुछ ऐसा जो फ्रेशर्स का जो कुछ अपॉर्चुनिटीज रहता है उसका कुछ इन्फॉर्मेशन ईमेल पे भी भेज सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में कॉमर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है, तो बाद में आपको ईमेल पे भेज देंगे। और कुछ मुझे कुछ ऐड करना है। इन सब चीज़ों के लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मतलब जैसे इंग्लिश है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, रिटन मतलब राइटिंग में आपको समराइज नहीं आना चाहिए कई सारी चीज़ें, या मतलब इन टर्म्स ऑफ जैसे ईमेल्स लिखना है, या ये सारी बेसिक जो स्किल्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी तरह के जॉब के लिए। और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जैसे है आपको MS वर्ड, एक्सेल ये सब आना चाहिए। और अगर बैंक ये तो पढ़ा चुका हूँ मैम, 2 ईयर पढ़ा चुका हूँ, जैसे ऑफिस और बैंक ये 2 ईयर तो पढ़ा चुका हूँ। सॉरी सुशांत, मुझे समझ नहीं आया, प्लीज हेल्प करो। हाँ, वेरी गुड। वो कह रहे कि वो कंप्यूटर वगैरह वहाँ पे स्टडी सेंटर में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स को, तो काफी अच्छी चीज है। तो आपको और क्या क्या दिक्कतें आती है, जैसे आपका जो आगे पढ़ना है या कुछ करना है तो आपको क्या लगता है? उनसे बात क्या करना चाहिए, वो काफी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हाँ, कौन सा एजुकेशन का एंड कौन सा एजुकेशन देना चाहिए उसके बाद वो समझ में नहीं आ रहा। तो आपका क्या पढ़ाई हुआ है? कोई एमकॉम हुआ है। दोनों का? अच्छा, तो अभी मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जैसे CA कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कुछ फ्रेशर्स के लिए जॉब्स है, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो ये ब्रॉडली है। और आप US के लिए आप हायर स्टडीज के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी करना है आगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफी इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश और स्पीकिंग और राइटिंग। तो उसमें आपको थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा वहाँ पे स्टडी सेंटर में। और ये आप रेगुलरली आते हैं हर संडे तो हर सैटरडे, तो काफी अच्छा रहेगा आपको। ठीक है। और कोई स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड क्या है वहाँ पे, और बाकी स्टूडेंट्स का? सर मैं ओके, हाँ हाँ सर मैं BA अपियर हूँ अभी, तो मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? अच्छा, BA पढ़े हैं? BE, ओके, इंजीनियरिंग। हाँ, ओके, कौन से सब्जेक्ट में है? इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। तो अभी आप कौन से ईयर में हैं? सर फाइनल ईयर। ओके। तो ये BE फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में है। तो कृतिका जी, आपको कुछ इसमें उनको सजेस्ट करना है? श्योर। मेरे जो छोटे भाई है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में ही अभी ग्रेजुएट हुए लास्ट ईयर, और उनको कैंपस रिक्रूटमेंट से उनको जॉब ऑफर मिली थी। तो आप जो कॉलेज में है वहाँ से कोई कैंपस रिक्रूटमेंट वगैरह होती है क्या? हाँ मैम होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं आती। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, सॉरी। तो आप कैंपस प्लेसमेंट होता है? हाँ सर। हाँ, तो आप अपीयर करने वाले हैं? हाँ। ओके, तो हाँ, तो उसके लिए मतलब जब आपके पास कैंपस रिक्रूटमेंट आए और अगर आपके पास कोई ऑफर आए, तो सबसे पहला काम ये करना है कि अगर कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो सबसे पहले वो जॉब एक्सेप्ट कर लेना और वो जॉब पे काम करना शुरू कर देना।
क्योंकि पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको अगर कोई जॉब ऑफर कर रहा है तो आप कुछ नया शुरू कीजिए और नया ट्राई कीजिए, और फिर वहां से आपको बहुत सारी आइडियाज मिलेगी, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स मिलेंगे। मतलब आप किस तरह से उसी कंपनी में ग्रो हो सकते हैं या कोई दूसरे कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो आपका फोकस होना चाहिए कैंपस रिक्रूटमेंट, और उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। अभी आप वहाँ पे इंग्लिश का कैसे तैयारी कर रहे हैं? इंग्लिश स्पीकिंग कॉलेज में होता है कुछ? नहीं, क्लास होते हैं। तो कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज इन इंग्लिश. ओके, व्हाट इज योर नेम? कौस्तुभ काळे. हाँ, कौस्तुभ काळे. okay. So you prepare well and then you create some environment there at study center. So you start some or you invite some guest speaker. इंग्लिश में जो एक्सपर्ट है क्लासेस बाहर से बुलाइए और इंग्लिश का कुछ वहाँ पे क्लासेस शुरू कीजिए. ठीक है. और किसी को कुछ क्वेश्चंस है वहाँ पे? और वहाँ पे जस्ट क्वेश्चन, वहाँ पे मॉकअप्स होते हैं क्या? इंटरव्यू मॉकअप वगैरह वैसी कोई फैसिलिटी है? सर खाड़े. हाँ, अच्छा, ये दूसरे हैं. आप क्या प्रश्न है? व्हाट इज नया कुछ क्वेश्चन है आपको? सर माझं नाव प्रफुल्ल मेश्राम आहे. हाँ, प्रफुल्ल. माझा ITI आणि DED झालेला आहे. हॅलो, बोलत राहा. तुम्हाला काय प्रश्न आहे? पुढे काय करणार आहे? आता तर माझ्या MBA करायचा विचार आहे. अपियर आहे सर BA. MBA. नाही सर, BA झालेला आहे. अच्छा ITI आणि DED झालेला आहे. अच्छा, BA करायचं आहे. ओके. नाही सर, आता BA चालू आहे अपियर मध्ये. हाँ, तर समोर सर ITI बेसवर आपल्याला काय करायला? तो कृतिका जी, इन्होंने ITI किया है. ITI मध्ये कुठला सब्जेक्ट है? मेकॅनिक आहे. मैकेनिक. अच्छा, ITI में मैकेनिक किया है. बाद में मुझे 10वीं के बाद किया है. उसके बाद उन्होंने DED किया है और अभी वो BA कर रहे हैं. So be it the teacher. So he will go for teacher. तो मतलब फिर इनके लिए तो आई एम श्योर कि इनका प्लान यही है कि टीचर बनना है, या मतलब टीचिंग एवेन्यूज है उनके लिए, राइट? मतलब वही उनका तुम्हाला गोल. टीचिंग मध्ये जॉब मिळेल का? तर टीचिंग मध्ये तर विचार केलेला आहे, पण सर मी ITI आता केलेला आहे. अच्छा अच्छा. तिथे मॉकला समजा तुमचं BA झाल्यानंतर MA इन एज्युकेशन आहे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स मध्ये. तर तुम्हाला आणखी एक आहे अपॉर्च्युनिटी. जितके लोक तिथे आहेत हॅलो, हा, भारतामध्ये चांगल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये ऍडमिशन तुम्ही जितके लोक आहेत, म्हणजे एक पॅरल हे आहे की तुम्हाला अमेरिकेत जायचं असेल तर आधी चांगलं टाटा इन्स्टिट्यूट किंवा BE झाल्यानंतर चांगल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये मॅनेजमेंट किंवा जे पण तुम्हाला इंटरेस्ट आहे MBA वगैरे, तर ते शिकल्यानंतर तुम्ही बाहेर पण जाऊ शकता बाहेर. तर तुम्हाला MA एज्युकेशन एक प्रोग्राम आहे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स मध्ये. तर त्याचे दरवर्षी ऍडव्हर्टाईज निघते, मला वाटते जानेवारी मध्ये. तर ते अप्लाय करू शकता तुम्ही. MA एज्युकेशन सर. एज्युकेशन टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस. ठीक आहे. तर आपल्याला म्हणजे कुठं महाराष्ट्रामध्ये कुठं भेटू शकतो? हाँ, तुम्ही आधी एजुकेशन जे मैडम म्हणजे बरंच हे है कि मला वाटतं कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पे जॉब लगता है वो करते रहिए और बाकी आगे पढ़ते रहिए.
दैट इज राइट। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले उनको पहले आप ग्रैब कीजिए। मतलब वो जॉब कीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस के थ्रू भी आपको यहाँ आने के अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। जैसे 2-3 साल उस कंपनी में काम कीजिए तो ये कंपनी खुद आपको जब अपॉर्चुनिटीज होती है अमेरिका में, तब आपको वो लोग ऑफर कर सकते हैं रोल। थैंक यू। कृतिका, एक क्वेश्चन मेरा ऐसा है, देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स देखे हैं जो BA BCom है या MA MCom है वगैरह, जो पर्टिकुलरली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में जिन्होंने स्टडीज किए हैं, तो आर्ट्स कॉमर्स में वगैरह, तो मेजर पॉपुलेशन मैंने देखा है कि दे ऑल स्टार्ट द प्रिपरेशंस फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, बैंकिंग बोलिए या फिर गवर्नमेंट की रेलवेज बोलिए या जो कुछ भी है, तो इन एग्जाम को प्रिपेयर करते रहते हैं और दे हैव ब्लैंक पीरियड, दे डोंट स्टार्ट एनी वर्क। तो मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि इन स्टूडेंट्स को कि दो दे प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयर करते करते वो एक्चुअली खाली रहने के बजाय कुछ कहीं तो भी जॉब ज्वाइन कर ले। पर अभी क्वेश्चन ये आता है कि जैसे इंजीनियरिंग फील्ड के कोई स्टूडेंट्स है तो उन्हें तो गाइडलाइन क्लियर है कि दे कैन गो टू एनी इंडस्ट्री, दे कैन अप्लाई फॉर एनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट ऐसे BA BCom ग्रेजुएट के लिए कुछ आपका आइडिया है कि प्राइवेट इंडस्ट्री में ये लोग कहाँ पे जॉब एप्लीकेशंस के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें इमीडिएटली विदाउट एक्सपीरियंस फ्रेशर्स बेस पे जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और वाइल वर्किंग दे कैन प्रिपेयर फॉर द अदर अपॉर्चुनिटी। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर अगर आप कुछ हाईलाइट कर पाएंगे तो उन्हें और अच्छा गाइडलाइन मिल सकता है। Could you hear Kritika? Hello? I think the connection is lost. So, Kritika, now yes, we can hear you. Do you get my question, Kritika? बिल्कुल बिल्कुल। तो श्योर। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपने जैसे BCom ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, मतलब जैसे एग्जाम भी आपकी खत्म हो गई है, आपको रिजल्ट तक की राह देखने की भी जरूरत नहीं है। आप जाके मार्केट में जॉब शुरू कर सकते हो, चेक करना, ढूंढना। ऐसी बहुत सारी कॉल सेंटर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज है आज की तारीख में, जहां आप जहां फ्रेशर्स को वेलकम किया जाता है ताकि वो उनको ट्रेन किया जाता है। वहां पे आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब आपको बेसिक इंग्लिश बोलना आना चाहिए, आपको जैसे ईमेल्स लिखना आना चाहिए। ये सब अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो कॉल सेंटर्स एक एवेन्यू है। दूसरा चॉइस ये है कि जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज में भी जैसे फ्रेशर्स को अप्लाई करने देते हैं, तो कई सारे बैंक्स उनके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में फ्रेशर्स को एक्सेप्ट करते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन इज लॉट ऑफ मार्केटिंग कंपनीज होती है, वहाँ पे भी आप अपने स्किल्स ब्रश अप कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश कर, और उसके थ्रू आपको दूसरे जॉब्स भी मिल सकते हैं जहाँ तक आप सारे एग्जाम्स। और कोई क्वेश्चन है? डॉक्टर राहुल जी, अनूप, किरण, रंजित, आपके यहाँ से कुछ क्वेश्चन? आदेश? नो सर। तो अभी कृतिका ने जो बताया ना, तो उसमें बेसिकली अगर कोई ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू गेट फॉर योर ग्रेजुएशन, और बेसिक नीड जो उन्होंने बताया है कि सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल ग्रो करना है, और ईमेल कैपेसिटी बोलो, इंटरनेट यूज करने की कैपेसिटी बोलो, इंग्लिश स्पीकिंग कैपेसिटी बोलो। तो अगर कोई स्टडीज कर रहा है ऑलरेडी, BA BCom जो भी स्टडीज कर रहा है,
they should parallelly also try to learn these skills. ये कुछ प्राइवेट क्लासेस लगाइए इंग्लिश स्किल के वगैरह, और जैसे आपका एग्जाम होता है डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, जस्ट गो फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जैसे उन्होंने बताया कि प्राइवेट बैंकिंग हो सकता है या फिर कॉल सेंटर हो सकते हैं या मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है, इसमें आप जॉब अप्लाई करिए और while working we can try for other opportunities. Yeah, Lalit, go ahead with other question. There is question from Kiran. I have done MCOM, MCM, want to join banking sector, tried nationalized banking, then want to join World Bank. What will be the eligibility criteria for that? I have 4 years experience from private sector. Please guide. So, sorry, what is the experience in? Hello? Hello? Okay. Hello? He has experience in banking sector for 4 years. He want to first join, I think, after this banking. Sorry, he is MCOM, MCM, and he is prepared for, I think, nationalized banking exams. He want to join bank. He want to know the eligibility criteria. He has experience of working in private sector. Experience in working in private sector, and wants to join the bank. And what kind of, like, in which department would he like to join? Retail or investment banking? Does the person have any idea, as in any specific? Kiran, yes. Kiran, is there any specific preference in banking sector you want to specialize in? And what is your experience in private sector? Which is it related to bank? He is not able to speak. It seems he will write this message. But broadly, his major focus is on, I think, World Bank, how one can join World after banking. But yeah, and he has done MCOM and MCM. Okay, I think the experience would matter a lot in this scenario. But maybe I can talk to this person more in person, or I could respond back on email if I have more details. He'll get his email and ask specific questions. Kiran, you want to speak? You can speak if you can speak. Okay. Kritika? Yeah. Hello. Yeah, hello. I'm Priyatama Dattatre. I'm from Pune. I'm working professionally in HR. I wanted to understand how is the job market available there in HR right now. The question is regarding HR. Job market is HR. Is that in correct? US? Correct. In Yes. What is your background? Education background? I'm MBA HR and having around 7 years of experience in it as an HR. How many years? 7 years. 7 years. Okay. Okay, so you have MBA in HR and 7 years of experience in HR, and you're trying to understand what is the scope. Sorry, I don't know much about opportunities here, but I can try to find out from some of our HR contacts as to what the avenue is. Sorry, I don't have the answer right away. Okay, it's okay. Anyhow, can you help me out quickly, tell me how you can approach so that directly, as you are giving
I mean, I'm understanding the talk, and you're talking about from the organization we are working with, we will get the opportunity through the organization. But if I'm an external candidate and I wanted to directly apply to work in US, so how I can approach there? So if your ultimate goal was to come to United States, right? There are a couple of ways to do it. One is need a sponsorship a visa sponsorship by your employer, or you internal company transfer. So the way I was able to get here was the internal company transfer, meaning I worked for JP Morgan Mumbai office. They found a role for me in New York office, and then they transferred me with an L1 visa. Okay. But if I So, so in that case, whom should I contact, or maybe where I can share my resume? could you try to like get some job in a multinational company in India? Yeah. Actually wanted to know which company she is working right now. I am working with Merck Global. So it's a global company? Yes, it is the MNC. They do have offices in US also. Very nice. So Right what? now, What you can do is actually within the job portal of your own company, you try to find the positions open in USA, which are open in the website, and you apply internally for the position. They may ask your resume, and if they are interested to relocate you, they definitely contact you. Okay, that is the one option. And if they agree, as Kritika said, you can get L1A visa or L1 visa to relocate to US. That is the one option. Another option would be, as she said, there are lots of recruiters in USA. So first of all, maybe you should try to find job sites. For example, Monster is there, or some other sites are there for job placement in USA. You can register yourself in that website, add your all background, and they contact you for job opening. Basically, you have to search open jobs in USA. You have to apply for the job, and they get back to you. So that is also another option. But you have to be careful that for USA now the caps are very limited, and it's getting filled up right on the first day of the April. So you have to prepare, start preparing maybe 6-7 months or 10 months before, so that there should be some employer ready for processing your visa, and you are ready with your documentation, so that the application is sent for visa processing before the end of the March. Okay, so that you have to be very clear on it. So these 2-3 options may help you to get to USA. Right, Kritika? Is that the right strategy? That is correct. Yep. Thank you, Kritika. No problem. Are there any more questions? We can take one more question. We have 3 more minutes before we complete. And you can also send your questions on email ID. I will write my email ID in case if you have any questions. I'll be in touch with you. So, are there any more questions from anyone, any participant? So seems it was very good turnout. In the beginning, it was very few people, but and this study center there are around 10 students, and then at different places. So we have around I think around 20 people for today's session. So thank you so much. Lalit, before you close, I forgot to mention one thing for Anup sister. That Yes. The people that we have in USA, or even myself, we know some recruiters in USA.
who can process the visa and get them to USA. So if she is interested, she can send resume to Mahesh or Vinaya or even myself, and we will try to assign someone recruiter from USA, maybe, and then she can talk to them and can get to USA also. So not only Yes, for her, please. even for other people, Yeah. So, friends, please do write your details on email with me. So we'll be in touch with you. And please do remember the comment by Sushant. So there are opportunities, but most important is you need to prepare for your English, for especially for people who are I think preparing for competitive exams, that is very good area. But I think if you want to open up the market opportunities, private sector, so and other huge untapped areas, so we need to have basic skills. So that was the one of the major thrust, and I think wherever you get opportunity, small or big, you get hold of it and also start preparing for the higher education. So these are some of the guidelines, and if you have any questions, we will be in touch, and so do send emails, and do join on next Saturday. We may change the timing a little bit because it is almost 30 in US, so it is very difficult for the speakers to join. That was a suggestion from Vinaya. So is anyone want to speak anything, or we'll conclude now? Sushant? I just want to thank everyone to give me this opportunity to come online and just speak for everyone. And I think this was great, and I think we should have more sessions like this. I'm also sharing my email ID on the chat in case if anyone wants to Yes, reach please. out to me. Yes, please. Yeah, Lalit. So once we close, can you please stay online for a while? We will Yes. finalize the timing. Yes. So Kritika will write the email. So email ID. 1 second, I will. And do you have email ID? I will write here, Kritika. Yeah, this is here, Lalit. I have shown in the sharing screen, and chat message also there. Okay. Yeah, wonderful. Yeah, it's my So you, .last@gmail.com. Yeah, I've just typed it in there. okay, thank you so much. Thank you so much, Kritika, for taking out time and talking to the students students are in a remote place, and this in Bandara, and so we could connect to them. Thank you, Ranjit, for connecting with this study center. So we have the idea to connect with this different study center in India, and also reach out to the marginalized community and guide them. So thank you so much for this wonderful session. So it was very interactive, and we could address some of the important issues, and hopefully we'll follow up with the students. So thank you, Kritik, and everyone. You're welcome. So here, yeah. So here we close for today's session. Okay, thank you. Thank you, Kritika. Bye.
So maybe Sushant, we can talk on Skype if you want. Yes. Are you in my Skype list? I don't think. Please write your Skype ID, so I will connect and we'll close this session, today's session. Yes. Thank you. It is Sushant 2872. Got it? Yeah, I will invite. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Bye. Bye everyone. Bye everyone. Jai Bhim.